क्लिअर. वेन डायग्राम मध्ये नेहमी इंटरसेक्टिंग पॉईंट जो आहे तो पहिल्यांदा कव्हर करायचा, कॉमन पार्ट, आणि तिथनं आउटसाइडला जायचं. ओके. तो नेक्स्ट देखते क्या है हमारे पास. अरे सगळे वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम. ओके. आता हा जरा आपण आता थोडासा सेटच्या याच्यातनं जसं बाहेर जातोय. सेट आहे पण सेटचा आउटर लेवलकडे चाललोय आपण, एंडकडे चाललोय. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वॅलिटीज. ओके. त्यातले आपण कुठले घ्यायचं हे. ओके, तुम्ही सांगा कुठला घ्यायचा. आपल्याला इनइक्वॅलिटी सॉल्व करायची. इनइक्वॅलिटी मीन्स देर इज आयदर लेस दॅन साईन, ग्रेटर दॅन साईन, ऑर लेस दॅन ऑर इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू. एक्झॅक्ट इक्वल टू साईन कधी नसतं. इक्वल टू साईन असेल तर त्याला आपण म्हणतो इक्वेशन. हिअर इन्स्टेड ऑफ simple equal to sign they have given either less than equal to greater than or equal to like this. That's why it is called inequality. Clear. When there is only equal sign between two left side and right side part, then that equation is called as equation. Okay. बोला कुठलं घ्यायचं याच्यातलं. इनइक्वॅलिटी आपण सॉल्व करतोय. दॅट मीन्स फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, इंटरवल्स ऑफ एक्स, हे आपल्याला कव्हर करायचं आहे. सेकंड वन. ओके. त्यातलं सेकंड वन घ्यायचं आहे. x square minus x is greater than 20, right? Take this 20 here. X square minus x minus 20 is greater than 0. Factorize this. X minus 5, x plus 4 greater than 0, right? Okay. Now instead of going theory part, we will solve this by using Wavy curve method. Okay, what is Wavy curve method? Product of this bracket is greater than 0. Consider this bracket as 0, first bracket. X is equal to 5, right? Consider this bracket as 0, minus 4. Clear? The power of both brackets, both bracket is 1. Okay, that means you have to consider this as plus sign, this as minus. Always remember this part. The sign of the part which is after the last digit, last number which we have noted, is always considered as positive. Previous part negative, again previous. That means alternate plus minus plus minus. Because of this, those brackets have odd power 1. Okay. इथे जर का स्क्वेअर असता, हा जगा स्क्वेअर असता, फॉर एक्झाम्पल x minus 5 bracket square, so we keep this sign as positive here also. But because of this is odd power, we change this sign. Again this is odd power, we change the sign. Clear? Always this is the plus sign. The sign after the last digit is always plus sign. And write down these numbers on this line in increasing order, like as number line. Clear? And that's why it is called wavy curve. Pending per problem. Okay. Now we want greater than 0 part, that means positive part, that means this part as well as this part, right? What is the range from 5 to onwards up to infinity? What is the range of this part? Minus infinity to minus 4. But there is no sign of equal to sign, which is simply greater than sign. That means we cannot consider this minus 4 as well as this minus 5 plus 5 in our set or in answer.
that means x belongs to minus infinity to minus 4. We cannot consider this minus 4. Why? Because there is no equal to sign. जर का हे असं असतं इक्वल टू साइन पण असतं अटॅच झालेलं तर आपण इथे मायनस 4ला स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज केला असता. बट दिस इज ओनली ग्रेटर दॅन साइन. ओके, if there is only greater than sign, less than sign, you cannot use square, you have to use round bracket. Okay, excluding that, meaning is excluding that point. Union. Next range is from 5 to onwards, excluding this 5 because there is no greater equal to sign. And infinity is always declared with round bracket, whether it is plus side or minus side. Infinity is always with round bracket. If there is equal to sign, you have to consider these endpoints also. Clear? Okay. One step, starting step. Always try to move this number to this side so that it becomes 0 on the right side. Clear? आणि मग फॅक्टराइज करायचं. इकडे नंबर ठेवून फॅक्टराइज करायचं नाही, इथे झिरोच करायचा. ग्रेटर दॅन 0, लेस दॅन 0, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, लेस दॅन ऑर इक्वल टू काही असायला पाहिजे असलं झालं, पण इथे 0 ठेवायचा. क्लिअर? आणि नंबर लाईनवरती तुम्हाला सांगितलं की दोन्ही ब्रॅकेट्स 0 करताना जे काही व्हॅल्यूज येतील त्या इथे इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहायच्या. लास्ट डिजिट नंतरचा प्लस एरिया असतो, त्याच्या अलीकडे मायनस प्लस जर का यांचे ऑड पॉवर असतील तर त्या ब्रॅकेटची. इवन पॉवर असेल तर ती साइन परत रिपीट करायचं. क्लिअर? ओके, आता मला मग ह्याचं सांगा बरं कसं होईल. या फर्स्ट वनचं मी इथे लिहितो. ह्याला वेव्ही कर्वची गरज नाही. का सांगतो? इथे वेव्ही कर्व का वापरला? बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Okay, this is linear. Okay, shift this plus 7 to subtract 7 from all the three parts, that is minus 9 minus 7. Just a minute. हाँ बोला सर. हाँ बोला. लेक्चर मध्ये बोला ना. नाही नाही, मी तुमचं हे बघितलं, मी व्हॉट्सअप त्या मुलीचा पेपर मी बघितला, तर मी तुम्हाला मार्क्स जे आहेत ना माझं लेक्चर संपलं की लगेच पाठवून देतो. चालेल. ओके ओके हो. ओके, whenever there is linear equation, linear expression, sorry, okay, then first try to convert this middle part only in the form of x. That means you have to subtract 7 from all three parts. 9 minus 9 minus 7 less than 2x less than or equal to 19 minus 7, that is minus 16 less than 2x less than or equal to 19 minus 12, that is 12. Now divide each part by 2. Divide each part by 2, that is minus 8 less than x less than or equal to 12. Clear? Now x must be between minus 8 to 12. That means x belongs to minus 8 comma 12. But this side does not having any equal to sign, that means you have to use round bracket. But this side is along with equal to sign, that means you have to consider this with square bracket. Sorry 6 कारण divided by each part by 2 म्हटले ना आपण. हा नाही, इथे बरोबर होतं हे 12, इथे 6 व्हायला पाहिजे. बरोबर डिवाइडेड बाय 6 म्हणजे हे पण 12 च्या ऐवजी 6 होईल. क्लिअर? त्या लिनियर एक्सप्रेशनला काही प्रॉब्लेम नसतो. प्रॉब्लेम येतो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लाईक दिस. तिथे तुम्हाला वेव्ही कर्व मेथड वापरायची. लिनियरला काही गरज नाही. क्लिअर? हाऊ टू सॉल्व इनइक्वॅलिटीज. ओके, हे कसं सॉल्व करणार किंवा हे बघू आपण. कुठलं घ्यायचं, थर्ड वन का फोर्थ वन घ्यायचं? हे आपण ऑलरेडी
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बघितले कसं करायचं. हा पार्ट बघू की ज्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर पार्ट आलेला आहे. हाऊ टू हँडल डिनॉमिनेटर. ओहो, हाऊ टू हँडल डिनॉमिनेटर हे आपण पहिल्यांदा बघू. आता मला वाटतं तुमचं याच्यामध्ये झालं असेल लेक्चरमध्ये स्टार्टिंगला बेसिक मॅथमॅटिक्स. ओके, ऑलवेज शिफ्ट दिस डिनॉमिनेटर टू ऑपोजिट साइड. 2x less than or equal to 5 into x minus 4, that is 5x minus 20, right? Clear? Now shift this 2x to this side. 0 less than or equal to 2x, इकडे आला तर 5 मायनस होईल, यहाँ 3x minus 20, right? Shift this 20 here, shift this 3 here. 20 upon 3 must be less than or equal to x. That means x belongs to, x must be greater than 20 by 3 सांगा. or equal to, okay. म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट minimum value must be 20 by 3 and maximum value is infinity. Clear? तो डिनॉमिनेटर जो आहे तो नेहमी अपोजिट साईडला शिफ्ट करून घ्यायचा आणि सगळे एक एक्सच्या टर्म्स एका साईडला, लिनियर असेल तर, क्वाड्रेटिक असेल तर तुम्हाला सगळे एक्सप्रेशन एका साईडला, 0 एका साईडला ठेवावा लागतो. चेक करू आपण. हा क्वेश्चन बघू म्हणता. इफ ए इज range of A, range of B and range of C are given, you have to find A union B, B union C like this. काय करायचं बोला, कसं करायचं कवर ह्याला. एक क्वेश्चन हेच लागेल आपण. If A is -7 to 3 including 3, B is 2 to 6 including both, and C is including 4 and 9, A union B, union mean common part. Okay, just मी नंबर लाईन ड्रॉ करतोय. -7 to 3 ही ए ची झाली, बी ची 2 to 6. हा बोला. हा round bracket means excluding this number. You cannot consider this as a element of this A. Okay, if there is square bracket, then you have to consider this element as the part of A. Clear? तो यहाँ 7 को हम एम्प्टी सर्कल बनाएंगे जब जब वहाँ एक्सक्लूडिंग होगा, राउंड ब्रैकेट होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो उसको इंक्लूड करने के लिए एज इट इज डार्क करेंगे तो भी चलेगा. ये 3 हम डार्क करेंगे, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग. ओके, फॉर बी बोथ आर इंक्लूडेड. डार्क. Now what is A union B? Total. That means -7 को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, तो राउंड ब्रैकेट ही रहेगा, कॉमा 6. क्लियर? B यूनियन C वैसे ही होगा, A यूनियन C वैसे ही होगा, जैसा हमने यहाँ किया वैसा ही ऑपरेशन करने हैं. अब ये A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A intersection B means common point between A and B. Okay, AB का रेंज क्या है? A का रेंज है this to this, right? This is A. And what is B? 2 to 6. तो इनके बीच कॉमन क्या है? खाली इतना ही पार्ट. इतना ही पार्ट क्या है? कॉमन है, राइट?
तो ये कॉमन पार्ट कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 and 3, between 2 and 3, but including both because both are darkened, both have square bracket, 2 as well as 3, that means including 2 and 3. Clear? Okay. तो सिंपली आप अगर ये नंबर्स प्लॉट करते हैं लाइन पर, देखो ध्यान से देखो, मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे एज पर द रूल ऑफ नंबर लाइन। अगर ये गलती से यहाँ यहाँ घूम गए, चेंज हो गए, तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यू शुड मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स ऑन दिस लाइन। क्लिअर? घाई घाई तुम्ही नंबर कुठेतरी कुठेही लिहाल आणि नंतर मग तो सगळा ऑर्डर चेंज करताल। नेहमी ऑर्डरला या महत्व आहे। ओके, ह्याच्यामध्ये आपण एक काम करूया, हा एक पार्ट घेऊया की ज्यामध्ये हे दोन पार्ट्स कन्सिडर करू, बघूया आपल्याला हे जमतंय का। तर त्याच पेजवरती मला पाहिजे, पण आता कसं करायचं, जाऊन दे। या सॉफ्टवेअरचा हा एक ड्रॉप आहे की प्रत्येक वेळेस नवीन पेज ओपन होतो आणि मगाच्या पेजवरचं आपलं, मगाच्या पेजमध्ये एक काय होता, ए डॅश बी इंटरसेक्शन बी, ए डैश, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, वो पहले देखते हैं। -7 to 3, -7 to 3 को हम हटा देंगे तो ये होगा ए डैश। -7 to 3, ये -7 है, ये 3 है, इसको हटा देंगे तो ये ऐसा होगा, ये दोनों मिलकर होगा ए डैश, राइट। बी, व्हाट इज बी? बी इज 2 to 6, ओके, 2 to 6, ये हमारा बी है, इंक्लूडिंग बोथ डार्कन, ये है ये एम्प्टी, ये हमारा बी है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। कॉमन पार्ट बिटवीन ए डैश एंड बी क्या है, बोलो कौन सा पार्ट ए डैश में भी है और अंडर है, बी के अंदर भी है। 3 to 6, दिस पार्ट, दैट मीन्स ए डैश intersection B is 3 to 6 including both. Clear? Yes or no? तो अगर हम नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं तो ये हमको सिंपल हो जाएगा, राइट? जस्ट मिनट, और कौन सा है इसमें, बी माइनस सी, दैट मीन्स बी सेट से सी के एलिमेंट्स हम हटा देंगे। ओके, यहाँ यही इसी पेज पर मैं दिखाता हूँ। व्हाट इज बी? बी इज फ्रॉम 2 to 6 इंक्लूडिंग बोथ डार्कन दिस पॉइंट्स। सी इज 4 to 6, सॉरी 4 to 9, 4 to 9, अगेन डार्कन दिस 2 points, राइट। हम ए में से बी के पॉइंट जो है, जो ये पॉइंट्स है, ये हटा देंगे। ए कितना है 2 to 6 और बी कितना है 4 to 9, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट्स है 4 to 6, ये जो एरिया है वो हम ए से निकाल देंगे। तो ए कितना हो रहेगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस, सॉरी ए नहीं, बी है, बी माइनस सी का आंसर क्या आएगा, फ्रॉम 2 to this 4, राइट। आगे वाला पार्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। वैसे ही a माइनस बी लिखना है हमको, तो पहले a का लिखते हैं -7,
empty circle because it is excluded from the set to t which is included. माइनस बी, बी क्या है 2 to 6, 2 to 6 इंक्लूडिंग बोथ. ये है हमारा ए, ये है हमारा बी. ए में से बी के ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट ए में से ये जो एलिमेंट्स है हम हटा देंगे, तो हमारा ए माइनस बी कितना रहेगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू -7 राउंड ब्रैकेट बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेड अप टू 2, क्योंकि 2 to 3 ये हटा देंगे हम क्योंकि ये इसके अंडर भी आते हैं. और हमको क्या चाहिए? ए माइनस बी. ए में से बी के पॉइंट्स हटा देंगे. ए में से ए में क्या आता है? बी के अंडर आने वाले कौन कौन से पॉइंट है? 2 से 3 तक, 2 से 3 तक हम हटा देंगे. ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा? सॉरी, ये एक्सक्लूडिंग होगा क्योंकि 2 भी निकल गया है. सॉरी, ये 2 भी यहाँ से निकल गया, ये 2b के अंडर है, राइट. तो हमारे पास एक माइनस बी का आंसर आ गया -7 to 2 एक्सक्लूडिंग बोथ. यहाँ एक्सक्लूडिंग होना क्योंकि ये 2 यहाँ बी में है तो वो निकल जाएगा ए से. क्लियर है? और कौन सा लेना है? बोलिए. पेज नंबर किती यहाँ 12 म्हणजे वरती काय क्वेश्चन आहे का बघू आपण. एक जस्ट आपण एखादा क्वेश्चन नाही. ओके, तर सेटमध्ये आपण तेवढा पार्ट कव्हर केला. ह्याच्यापेक्षा सेटमध्ये काही नाही आहे. आता आपण रिलेशनकडे जाणार आहोत. ओके, हे रिलेशन पार्ट जरासा समजायला टफ आहे ॲज कम्पेअर टू सेट. व्हॉट इज रिलेशन? एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक्झाम्पल त्यांनी दिलं असेल तर बघूया. जस्ट रिलेशन. ओके, पहिल्यांदा आपण कार्टेशियन प्रॉडक्ट ही कन्सेप्ट क्लिअर करू म्हणजे तुम्हाला रिलेशन सपोज आहे. Suppose A and B are any two sets. For example, A is 1 and 2 containing two elements 1 and 2, B containing three elements A, B, C. Then Cartesian product A cross B. This notation is called Cartesian product. Okay, is nothing but the order pairs of the elements A and B. First element is always from set A and second element is always from set B because A first then B. बरोबर, ऑर्डर पेअर मध्ये म्हणजे 1A 1B 1C 2A 2B 2C. these are the order pairs of A cross B. इथे क्रॉस म्हणजे काय आपण म्हणू? कार्टेशियन प्रॉडक्ट किंवा A क्रॉस म्हटलं ते चालेल. ओके, क्लिअर? तर आपण आधी पहिले ऑर्डर पेअरवरती काही सम आहे का आधी चेक करूया. म्हणजे ऑर्डर पेअर ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली की मग आपल्याला ते पुढचं पार्ट कव्हर करायला सोपं जाईल. अरे एक्सरसाइज बघू. एक्सरसाइज म्हणून ऑर्डर पाहिजे इथं आपण बघूया. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल पहिल्यांदा कन्सिडर करू. इफ x minus 1 comma y plus 4 is equal to 1 comma 2, then what are the values of x and y? Okay, two order pairs are equal. There is equal to sign between these two order pairs. Okay, that means first element must be equal to first element of the second order pair. Second element must be equal to second order pair. Second element of the second order pair. This is the relation when the two order pairs are equal. For example, हे आपण
जॉमेट्रीमध्ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्समध्ये लिहिलेलं आहे खूप वेळा, बरोबर आहे का? व्हॉट इज द एक्स व्हॅल्यू? 5, बरोबर ना? 5. सेम प्रोसेस हियर. Okay, this is called Cartesian system, x comma y. Same way this is the Cartesian system. फक्त याला सेट मध्ये आपण कार्टेशियन प्रोडक्ट म्हणतो, एवढंच, बाकी काही नाही. दॅट मीन्स x minus 1 is equal to 1, that means x is equal to 2. y plus 4 is equal to 2, that is y is equal to minus 2. क्लिअर? त्या जे काही आपण जॉमेट्रीमध्ये कार्टेशियन सिस्टीम मध्ये बघितलं तेच लॉजिक आहे. वेन टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और टू कार्टेशियन एलिमेंट्स आर सेम, then corresponding elements are also same, corresponding. Okay, that means first element to first element, second element to second element. This is the meaning. आता ओरली इथेच घेऊ आपण या सेकंड सम मध्ये. बघा, तुम्हाला कर्सर दिसतोय आता माझा क्रॉस आहे असा. ओके, x plus 1/3 comma y upon 3 minus 1 is equal to 1/2 comma 3/2. That means x plus 1/3 must be equal to half, right? That means x is equal to 1/2 minus 1/3. 1/2 minus 1/3, that is 1/6. Similarly, y by 3 minus 1 is equal to 3/2. Shift this minus 1 to opposite side. Y by 3 is equal to 3/2 plus 1. That is 5/3. 5/2. Y upon 3 is equal to 5/2. Shift this 3 also. Y is equal to 15/2. क्लियर? अब ये क्वेश्चन है वो देखते हैं. दिखने में सिंपल है, उसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. अगर कंसेप्ट मालूम हो गया तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सके एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम. हाँ हाँ, कर्ली दिस ब्रॅकेट इज नथिंग बट द सेट. कुठला? हो हो, मगाशी आला ना. हे हे एलिमेंट्स आहेत, त्यामुळे इथे तो मगाची कन्सेप्ट वापरायची नाही. वेवी कर्वची मेथड इथे नाही. इथे हे दोन्ही ब्रॅकेट्समध्ये हे एलिमेंट दिलेत. हे नेहमी राऊंड ब्रॅकेटमध्ये असणार आहेत. ऑर्डर पेअरमधले एलिमेंट्स असतात ते नेहमी राऊंड ब्रॅकेटमध्ये असतात. सेटमधले पॉईंट्स असतात हे कर्ली ब्रॅकेटमध्ये असतात. हां हां, ह्याचं म्हणतोस तू, इथल्या सीचं म्हणतोस? हां नाही ना, हां, तर इथे नाही ॲक्च्युली हे इथे हा ॲक्च्युली कर्ली ब्रॅकेटच पाहिजे, कारण सेटला नेहमी कर्ली ब्रॅकेट वापरतो. प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे, कारण प्रिंटिंग करणारा किंवा टाईप करणारा माणूस असतो त्याला मॅथ्स माहिती असेलच असं नाही. ॲक्च्युली हा मिस्टेक आहे, ते कर्ली ब्रॅकेटच पाहिजे, कारण सेट आहे. सेट आर ऑलवेज enclosed within curly bracket. Elements are always enclosed within the curly bracket. Okay, first हम ये देखते हैं B cross A. Okay, B cross A, what is the meaning of this? Cartesian product of the elements of set A and set B, but first position must be from B set, that is X, comma second element from A set, right? XB, XC, YA, YB and YC. These are the Cartesian products of B cross A. Okay, this is the Cartesian product of B cross A. Now इथे ऑर्डर म्हणून शब्द म्हटलाय, ऑर्डर शब्द वापरलाय. ऑर्डर मस्ट बी सेम. B element first, then A element. Okay, A cross A means A comma A comma B, A comma C. Similarly, B comma A, B comma B, B comma C, C comma A, C comma B, C comma C. This, right? These are called Cartesian products. Clear? फक्त अरेंज करायचं, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, हे कायम लक्षात ठेवायचं. ओके, कन्सेप्ट अजून आपण जरासं पुढे जाऊया. हाँ क्या क्या?
ये पूरा नहीं लिखा मैंने, वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। सेम लॉजिक यहाँ रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए यूज करने का। लिख लिया? ओके। क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा क्वेश्चन वहाँ है, क्या है भाई, लिखेंगे कैसे हम? ओके, ऐसा करते हैं हम, ऊपर तक जाए। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया है हमको, क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या क्या पूछा है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमको पूछा है। ओके, देखते हैं क्या कर, पहले क्या फाइंड करेंगे हम, हमको ये पूछा है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बोलिए? बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, बी और सी में कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है? 4 5 6 है, या 5 6 है, दैट मीन्स 5 एंड 6 आर द कॉमन एलिमेंट्स। ओके, अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखने वाले हैं, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या होगा? ए का एलिमेंट आएगा, ए का एलिमेंट 1 है, तो 1,5 होगा, 1,6 होगा, राइट? सेकंड एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम बी, और बी इंटरसेक्शन सी सेट, 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6। हाँ बोलिए? हाँ, पूरा सेट हो गया। ये एक क्रॉस ये जो है इसका ये आंसर है टोटल का। ये हम ए दे रखा था, हमने बी इंटरसेक्शन सी निकला, अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिख रहे हैं। यहाँ ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ए का रहेगा, सेकंड एलिमेंट हम बी इंटरसेक्शन सी सेट से निकाल लेंगे और पेयर तैयार करेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, राइट? तो वैसे ही आपको क्या और निकालना है, कौन सा चेक करने का? ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है जो कल हमने देखी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी एंड सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। ओके, चेक करते हैं ये। ओके, अब हम आरएचएस चेक करेंगे उसका, देखते हैं आरएचएस क्या होगा। ये हो गया एलएचएस। अब हम आरएचएस करेंगे, आरएचएस, आरएचएस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, राइट? तो पहले हमको ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी यहाँ लिखते हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी बहुत लंबा होगा। ओके, चेक चेक करते हैं उसका। 1 6 ये 1,5 इधर भी है, इधर भी है।
1,6 इधर भी है, इधर भी है। 2,5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2,6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और क्या है? 3,5 3,6 भी 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और एलएचएस में क्या है हमारे पास? देखो 1516, 2526, 3536, 4546. That means the same elements are on left side as well as right side. That's why LHS is equal to RHS. Clear? ओके, ये देखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका। Express x comma y, express x comma y such that x square plus y square is equal to 100, where x and y belongs to whole number as a set of order pairs. ओके, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में हमको लिखना है। पहले ये सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक्स और वाई को होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्स 0 होता है तो वाई कितना होगा? वाई स्क्वायर इज 100, दैट इज वाई इज 10। ओके, अगर वाई 0 होता तो एक्स 10 होता। और कुछ कॉम्बिनेशन है। स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 100। और कौन कौन से है ऐसे? सॉरी, पहला 10 और 1 में 0, राइट, वही हमने वापस लिखा 10, 0। ओके, अब और कौन कौन से नंबर्स के उनके स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 100 होती है? 6,8, 8,6। और कोई है? तो हमारा ये ऑर्डर हो गया एक्स एज पर देयर गिवन कंडीशन। ऑर्डर पेयर मीन्स 2 एलिमेंट्स होने चाहिए हर एक राउंड ब्रैकेट में। ओके, इसलिए उन्होंने एक्स कॉमा वाई इधर डिक्लेयर किया है, वैसे हमको लिखना है। और इसके लिए कंडीशन ये दे रखी है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज रिलेशन, ये एक हमको देखना है। व्हाट इज रिलेशन, अगर इन्होंने डेफिनेशन दी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखते हैं यहाँ कोई रिलेशन। ओके, हम रिलेशन की डेफिनेशन की तरफ जाने वाले नहीं है, क्योंकि मैथ्स में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछते। हमको उस डेफिनेशन का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, राइट? क्लियर? व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये अगर हमको डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये मालूम होना चाहिए। क्लियर? वैसे ही व्हाट इज रिलेशन, यह अभी छोड़ दो, तो हम सम सॉल्व करते करते आपको मालूम हो जाएगा किसको रिलेशन कहते हैं और किसको रिलेशन नहीं कहते। लेकिन वो कंसेप्ट क्या है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। सपोज ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स, आर बी द रिलेशन between order pairs x and y such that every x comma y belongs to R implies x is less than y। ओके, पहले हमने R, ये जो है वो क्या है? ऑर्डर पेयर है। R इज नथिंग बट द ऑर्डर पेयर x comma y। तो हमने a और b, x फ्रॉम a एंड y फ्रॉम b निकाल लिए। 1,1 नहीं चाहिए, क्यों? 1,1 हो सकती है ना,
लेकिन रिलेशन में उन्होंने कंडीशन दे रखी है, x मस्ट बी लेस देन y होना चाहिए। ओके, तो यहाँ 1,1 नहीं हो सकता, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है। ओके, सेम वे 2,1 नहीं हो सकता, राइट, 2,4 और 2,5 ही हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 3,1 नहीं हो सकता। सिमिलरली 5, आता 5,5 पण होणार नाही, कारण इथे इक्वल टू साइन वापरच नाही, स्ट्रिक्टली लेस देन, एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन वाई होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चाहिए, तो 5,5 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। अब हम एक मजेदार बात सीखते हैं, यही मैं लिखता हूं, ए क्रॉस बी, ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी क्या क्या होंगे, देखो 1, 1, 1, 4, 1, 5, राइट, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 4, 5, 5. These are the available order pairs of A cross B, right? हमारा जो R है, एग्जाम्पल में दिया है R, ये इस ऑर्डर पेयर का सबसेट है। दैट मीन्स द एवरी ऑर्डर पेयर फ्रॉम दिस R is belongs to this A cross B, right? That means R cross B, तो कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट जो होगा, भी सेट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, उसको हम रिलेशन कहेंगे। क्लियर। एनी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी टू ए, बिकॉज ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कौन है, ए है, सेकंड कौन है, बी है। ओके, वैसे ही अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो हमको रिलेशन की तरफ जानते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या ये रिलेशन है या नहीं, कैसा हो सकता है, वो देखते हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। ये इंटरेस्टिंग A and B are two sets, ओके। रिलेशन कौन सा चाहिए हमको, R1 चाहिए। R1 कौन सा रिलेशन है, A, B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B, okay।
एंड उसमें कंडीशन क्या देखिए, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर होना चाहिए। ओके, देखते हैं। तो हम R1 डिफाइन करते हैं। R1 इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ए माइनस बी इवन नंबर होना चाहिए। ओके, 6 को लेते हैं और यहाँ 5 लेते हैं, तो 6 एंड 1 इसका डिफरेंस कितना होगा, 5। Is it even number? No, we cannot consider 6 comma 1 as a element of R1. Clear? 6 3, 6 minus 3, 3. Is it even number? No, cancel it. 6 comma 5, 6 minus 5, 1, not even number, also forget this. Now 8, 8 comma 1, 8 comma 1, 7, right? 7 is not even number, forget this pair. 8 comma 3, again 8 minus 3 is 5, odd number, forget this. 8 comma 5, 3 subtraction कितना आएगा, 3, 3 is not even number, forget that. That means R1 contains no element, right? Yes or no? That's why it is called null relation. Any relation which contain no element, जीरो भी एलिमेंट होए तो यहाँ जीरो नहीं लिखने का, जीरो इज ऑल्सो नंबर विच इज अ एलिमेंट, तो यहाँ हम खाली ये एम्प्टी रखेंगे इसको, ओके, और इसको हम आई से भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम R2 देखते हैं। R2 अब हमको बताएंगे क्या हम उसको कंसिडर करेंगे पेयर को या नहीं। अगेन फ्रॉम ए टू बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, 6 1 ये ऑर्डर पे लेता है। कंडीशन क्या दी है उन्होंने, a प्लस बी इज ऑड नंबर, a प्लस बी ऑड नंबर चाहिए, बोलिए a प्लस बी, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, राइट, नॉट ए ऑड नंबर है, अरे ऑड नंबर है, क्लियर, हमको ऑड नंबर चाहिए, क्लियर। 6 3, 6 3, that is 9, odd number. Next 6 5, 11, right, sorry 6 5. Now 8 1, odd number, एडिशन चाहिए हमको a प्लस b की, ऑड नंबर चाहिए। कौन सा गया, 8 3 हो गया, 8 3 11 चलेगा, देन 8 5 हो गया, तो ये रिलेशन हो गया, क्लियर। तो ये क्या बोले हो, ये क्या उन्होंने बोला है इसके लिए, R2 के लिए, is an universal relation. Universal relation means क्या, what is universal set, what is A cross B, A cross B 6 1 6 6 3 6 5 8 1 8 3 8 5। देखो ये A क्रॉस B के एलिमेंट्स सभी आए क्या, यहाँ सभी एलिमेंट्स, इसलिए इसको उन्होंने क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स order pairs from original A cross B are also included in this R2. That's why R2 is the universal relation. Okay, entire order pairs उसमें आ गए हैं, क्लियर। तो ये रिलेशन, हाँ क्या क्या, हाँ हाँ रिलेशन है, क्योंकि इसके ऑर्डर, ये जो एलिमेंट्स है हमारे R2 के ऑर्डर एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स, वे सभी A क्रॉस B से आए हैं। और अनदर थिंग, A क्रॉस B के एलिमेंट्स और R2 के एलिमेंट्स वन एंड द सेम है, तो ये तो रिलेशन तो है ही, लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी का क्या हो गया उसमें, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, क्योंकि इसके सभी के सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ गए। ओके,
जैसे हम नॉर्मल केस में बोलते हैं, अगर बेटा बेटे का बहुत सा कैरेक्टर फादर से मैच होता है, ओके, तो रिलेशन है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट बच्चे में वही कैरेक्टर्स वही सेम टू सेम आते हैं जो फादर के, तो वो हम उसको कहते हैं ना, जेरोक्स कॉपी है, कार्बन कॉपी है फादर की। वही इसका मीनिंग यहाँ एंटायर एलिमेंट्स R2 में जो है वो A क्रॉस B में अवेलेबल है, एक भी कम या ज्यादा नहीं है। तो ये रिलेशन तो है ही, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का ये है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जो मीनिंग यूनिवर्स का है हमारा रेगुलर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, वही कंसेप्ट यहाँ है। एंटायर पार्ट फ्रॉम A क्रॉस B इज इंक्लूडेड विद इन R2। क्लियर? म्हणजे आता रिलेशनची भीती गेली. हॅलो, रिलेशनची भीती गेली का? हां, ते रिलेशनच कन्सेप्ट झटकन मुलांना समजत नाही, हा मेन त्यांचा प्रॉब्लेम येतो. क्लिअर? आता आपल्याला रिलेशन मधल्या काही कन्सेप्ट बघायचे, रिलेशनशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट बघायचे. रिलेशन मध्ये प्रत्येक रिलेशन मध्ये ऑर्डर पेअर्स असणार आहेत. ऑर्डर पेअर्स मध्ये दोन एलिमेंट्स असणार आहे, पहिला असणार आहे एक्स, दुसरा असणार आहे वाय. जसं आपण जॉमेट्रीमध्ये आपण कार्टेशियन लिहितो आपण एक्स वाय, तसं पहिला एलिमेंट असणार आहे एक्स, दुसरा एलिमेंट असणार आहे वाय. ऑल group of x elements is called domain. All group of x elements of relation is nothing but domain of the relation. Okay, all y elements of each order pair taken from relation is called a range. Clear? आता एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे आपल्याला क्लिअर होईल. ओके, त्यांनी एखादा सॉल्व्ह केलेला असेल तर ते मला लिहायचं त्रास वाचेल. पेन पुढे गेलं. इथे पुढे अरे रिलेशनचे टाईप्स दिलेत त्यांनी आम्हाला, ते नको आहे आम्हाला. पाहिजे काय, डोमेन आणि रेंज पाहिजे नाही का? म्हणजे काय का डोमेन आणि रेंज कुठे दिसते इथे? डोमेन एंड, ओके दिसलं कुठे? को डोमेन, ओके, म्हणजे इसके आगे पिछले वाले, ओके यहाँ है तो देखते हैं. डोमेन 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 रेंज, स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है.
डोमेन। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, देखते हैं उन्होंने कुछ दिया है क्या। ओके, पहला एग्जाम्पल मुझे देखते हैं। मुद्दाहून टेक्स्ट मधलीच मी सॉल्व केलेलं तुम्हाला समजून सांगतो, म्हणजे माझा तो हम पहले ये देखते हैं 15 से 1 to 15 में कौन से प्राइम नंबर्स है। बोलिए, प्राइम नंबर्स लेस देन 15 कौन कौन से है। वन टू थ्री फाइव 7 11 13, ओके, नहीं अप टू 15 नहीं चाहिए हमको। ओके, तो ये हमारे ए की वैल्यूज हो गई है सब। ए इज द प्राइम नंबर लेस देन 15। अब हम आर लिखने हैं रिलेशन, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ए आएगा, बाद में उसका स्क्वायर आएगा 1 1 2 4 3 9 5 25 7 49 11 121 13 sorry curly bracket. This is the relation. Clear? Now what is domain? डोमेन की डेफिनेशन अब तक आ जाएंगे जी। एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर टेकन फ्रॉम रिलेशन। तो डोमेन का सेट क्या हो गया, 1 2 3 5 7 11 and 13, right? What is range? Range is the set of second element taken from each order pair of the relation. 1 4 9 25 49 121 169. Clear? Clear? अरे हाँ या ना। हाँ, तो पहले आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। रिलेशन में जो जो ऑर्डर पेयर्स है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे और उसका सेट बनाएंगे तो वो कहलाएगा डोमेन। और रिलेशन में से ईच ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर हम सेट के तरफ लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेंज। क्लियर? तो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा लेने का है इसमें से। बहुत सारे है सिंपल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे उसको एस्टेब्लिश करते हैं हम। कौन सा लेने का? इक्वल टू साइन नहीं यूज किया है। क्लियर? तो हम पहले इसको 1 लेंगे, 1 और a प्लस 2 दैट इज ये होगा 1 प्लस 2 दैट इज 2 4
3, 5, 4, 6 एंड सॉरी 5 नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं यूज किए, इधर इक्वल टू साइन नहीं है तो हम इधर इसको क्लोज कर देंगे। व्हाट इज नाउ डोमेन? 1, 2, 3, 4. What is range? 3, 4, 5 and 6. Okay, clear? और कुछ है क्या हमारे पास? थोड़ा सा ट्रिकी। ओके, ये देखते हैं 6, 1 कोडोमेन। इस केस में हमको एक्चुअली ए एंड बी सेपरेट नहीं दिया है। बी जो है, बी के जो सब भी एलिमेंट से आएंगे एक्चुअली उसमें कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ जो बी क्या है, रिलेशन का हर ऑर्डर पेयर में से सेकंड एलिमेंट। ओके, ये जो होगा ये प्लस ये हमारा क्या हो गया? रेंज में से रेंज के सब एलिमेंट्स कोडोमेन में ही, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि रेंज में जो एलिमेंट्स है वो कोडोमेन में होने ही चाहिए, लेकिन कोडोमेन में इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये 4, 5, 6 जो है वो होंगे ही, इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में कोडोमेन का कोई पूछा नहीं है, क्योंकि उन्होंने टी से दिया ही नहीं हमको। ओके, खाली रेंज और डोमेन इसीलिए हमको पूछा। कोडोमेन हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें और क्या एडिशनल होगा या हमको मालूम नहीं है। इतने तो एलिमेंट्स कोडोमेन में होने ही चाहिए कम से कम। क्लियर? इससे ज्यादा होंगे लेकिन क्या होंगे मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सम है वो ऐसा डेवलप किया कि इससे हम खाली रेंज और डोमेन ही लिख पाएंगे। फॉर दैट पर्पज दे हैव कंसिडर दिस एग्जाम्पल। ओके, अब हम R6 का देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने कट किया क्या? property है
नाम क्या था? अगर आपको नहीं बताया होगा तो यही नाम था, reflexive. That means every triangle is congruent with itself. Symmetry. That means if first triangle is congruent to second, then second triangle must be congruent to first triangle. And transitive. That means first triangle is congruent to second, second is congruent to third, then first and third are congruent to each other. That is transitive. तेच वर्ड्स होते. फक्त मे बी तुम्हाला काही ते वर्ड सांगितले नसतील, फक्त तुम्हाला हे सांगितलं फर्स्ट एव्हरी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू इट सेल्फ, फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड इज फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो उसी को हमने नाम दिया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ओके, तो हम जस्ट आज इसके डेफिनेशन देखेंगे, क्या उनका मीनिंग है. ओके, और बाद में उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. देखते कहाँ मिल गया था मुझे, यहीं पे कहीं मुझे मिल गया था वो रिफ्लेक्सिव. देखते